हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने ईज ऑफ लर्न चैनल पे। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी यूज 6 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स. So those 6 type of operators are arithmetic, relational operators, logical operators, bitwise, assignment and miscellaneous operators. So let's talk about arithmetic operators. अर्थमेटिक में अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे एडिशन वगैरह परफॉर्म करना, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट करना. एडिशन ऑपरेटर इज वन ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेटर विच आर 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स. जैसे मेरे पास 2 वेरिएबल हैं ए एंड बी. ए की वैल्यू मैंने ले ली 10, बी की वैल्यू वैसे मैंने असाइन कर दिया 20. Okay, now we have to add these 2 variable and need to store in other variable, so we took c variable. So we should write like this, like first we have to write c, फिर आएगा इक्वल्स टू देन दोनों ऑपरेंड का एडिशन. यहाँ ए एंड बी को हम बोलेंगे ऑपरेंड, मतलब जो भी वेरिएबल हम लोग जिनके बीच में ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना है तो उनको बोलते हैं ऑपरेंड, OPERAND. एंड उसके बीच में जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं दोनों का, ए एंड बी का, तो उसके बीच में जो हमने साइन लिया है, यहाँ पे हमने एडिशन का साइन लिया है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑपरेटर. So it will perform addition of 10 and 20 and result will be 30 and it will store in a variable c. Okay, सेम एज फॉर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लाइक ए एंड बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग माइनस ऑपरेटर लेंगे दोनों ऑपरेंड्स के बीच में. सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन. Multiplication, when we use multiplication operator, then output will be 200 and it will store in variable c. As same, when we will use division operator between two operands, then it will give the quotient and quotient will store in variable c. So if we write c is equals to a divided by b, then 10 will divided by 20 and answer will be 2 and it will store in variable c. In modulus arithmetic operator, we use percentage operator. Like if we write c is equals to b percentage a, then it means b is divided by a and remainder will be the output, and here remainder as well as output is 0. In increment operator, we use 2 plus sign as an operator. For example, if I write c is equals to a plus plus, like a increment operator, then it means increment value of a is going to be stored in a variable c. Here value of a is 10, so a plus plus means value is incremented by 1 and it is now 11. Okay, and for decrement we use sign minus sign for 2 times. If I write c is equals to b minus minus, then output will be 19 because b is now decremented by 1 value. So 20 minus 1 is equals to 19. So the output will be 19 and it will store in c variable. Now next operator is relational operator. In C++, relational operators are used for comparing 2 or more than 2 numerical values. After comparison, the result returned by the relational operator is a Boolean data type value. Boolean data type value means it will contain only 2 values, either 0 or 1 value. Boolean data type value means it will contain only 2 values, either 0 or 1. We use 6 type of relational operators. These types are greater than, less than, greater than or equals to, less than or equals to, equal to, and not equals to. These all operators give value after comparison. For example, take two variable, or we can say that operands a and b. Operand a hold value 10 and operand b holds value 20. Now if we take greater than relational operator like this, c is equals to a is greater than b. अब ये स्टेटमेंट चेक कर रही है कि ए ग्रेटर है क्या बी से, है ना. कंडीशन चेक कर रही है. अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा आउटपुट आएगा 1. अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आउटपुट आएगा 0, क्योंकि ये दो ही कंटेन वैल्यू कर रही है ना, ओनली 0 and 1. ओके, तो अब ये कंडीशन हम लोग चेक करते हैं. ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू है 20. अब ए ग्रेटर तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा 0. और ये वैल्यू जो 0 है वो स्टोर किसके अंदर हो रही है, सी के अंदर ना, तो हमारा सी की वैल्यू जो होगी ना वो 0 हो जाएगी. सेम ऐसे ही लेस देन में होगा. इसके अंदर दोबारा हम लोग चेक करते हैं ए इज स्मॉलर देन बी, आउटपुट सही आएगा. कंडीशन ट्रू हो रही है ना, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 और ये 1 जो होगा वो सी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. सेम ऐसे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कंडीशन में अगर इसके अंदर बोला है कि अगर ग्रेटर भी है और इक्वल्स टू भी है, ठीक है, मतलब क्या तो ग्रेटर हो सकता है या फिर इक्वल्स टू भी हो सकता है. अगर हम लोग कंडीशन चेक करें
तो ए क्या ग्रेटर से है क्या, नहीं है, कंडीशन गलत हो गई। ए इज इक्वल्स टू बी है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे भी कंडीशन गलत हो चुकी है, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 0। इसके अंदर लेस देन और इक्वल्स टू के अंदर क्या होता है, बस ये लेस देन चेक करेगा, पहले देखेगा कि ए लेस देन बी है क्या, कंडीशन ट्रू हो गई। अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 1। अगर दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं एक बार, ए इज इक्वल्स टू बी है क्या, नहीं है, लेकिन हमारा आउटपुट आएगा 1 क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो चुकी है। नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर इज इक्वल्स टू। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, डबल इक्वल्स टू का साइन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और जैसे ए और फिर मैंने डबल इक्वल्स टू लिख दिया, तो अब ये क्या कर रहा है, ए की वैल्यू को बी की वैल्यू के साथ चेक करेगा कि इक्वल है या नहीं है। तो कंडीशन क्या हो रही है, गलत हो गई यहाँ पे, ए तो बी, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू 20, दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 0। नाउ नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर इज नॉट इक्वल्स टू। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और इक्वल से, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ सी इज इक्वल्स टू ए एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और इक्वल्स टू, और इसको बोल सकते हैं हम लोग ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। नाउ कंडीशन चेक करते हैं, ए इक्वल नहीं है बी के, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 1। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर। Logical operators are used to find out logic between values or variables, while relational operators are used for testing whether a particular condition is true or false. They only test one single condition at a time. Okay, then there comes a time when we need to test more than one condition at a single time. This situation is tackled by the logical operators. In computer science, logical operators provide us the functionality of testing multiple conditions at a single time. Okay. Here we have three type of logical operators that we use in C++ programming language. Logical AND, logical OR and logical NOT. Logical AND को double AND operator से represent करेंगे. Look, if I am taking two variable A and B, A hold 10 value and B hold 20. Okay. तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि दो कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या कर रहे थे, सिर्फ सिंगल कंडीशन दे रहे थे, पर यहाँ पे हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब दो कंडीशंस दूंगी उसको, फिर दोनों को क्या होना चाहिए, जब भी हम लोग एंड लेते हैं तो मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा आउटपुट आएगा 1, अदरवाइज 0 आएगा। कंडीशन दोनों ट्रू होती हैं तो आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो हमारा आउटपुट भी गलत हो जाएगा और 0 आ जाएगा। जब गलत का मतलब 0, ट्रू का मतलब 1 वैल्यू, ठीक है। तो जैसे अगर दो कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन अगर मैं देखूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी है क्या, नहीं, गलत हो गया। तो इस केस में पता है हमें दूसरी वैल्यू चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक भी गलत हो जाती है ना लॉजिकल एंड के अंदर, तो हम लोग दूसरी वैल्यू चेक नहीं करता कंपाइलर, ठीक है, वो उसका आउटपुट वैसे दे देगा 0। और ये 0 वैल्यू जो होगी वो हम सी वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, तो आउटपुट भी आ जाएगा 0। नाउ अगर लॉजिकल और करें तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 वर्टिकल लाइन से, और अगर मैं यहाँ पे भी दो कंडीशन दे रही हूँ। अब लॉजिकल और में क्या होता है कि अगर कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है तो हमारा आंसर भी ट्रू होगा, और मतलब 1 होगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर इसके अंदर कंडीशन चेक करते हैं हम लोग, ए स्मॉलर है क्या बी से, यस, कंडीशन इज़ ट्रू, तो हमारा आउटपुट भी 1 आएगा। अब दूसरी कंडीशन भी एक बार चेक कर लेते हैं, बी इज़ ग्रेटर देन है क्या, यस ट्रू है। बी इज इक्वल्स टू ए नहीं है, लेकिन बी इज़ ग्रेटर देन ए है, तो मतलब इसमें हमारा दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही है, तो आउटपुट हमारा आएगा 1। थर्ड होता है लॉजिकल नॉट। इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं लिखती हूँ सी इज इक्वल्स टू एक्सक्लेमेटरी मार्क मीन्स लॉजिकल नॉट, एंड देन एक कंडीशन दे दी मैंने, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए इज़ ग्रेटर देन बी है क्या, नहीं है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा इस कंडीशन से, 0। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया यहाँ पे, इट मीन्स लॉजिकल नॉट हमने यूज़ किया है। तो जब भी हमारा आउटपुट 0 हो रहा है तो ये आउटपुट को हमेशा क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो 0 का 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। ये होता है लॉजिकल नॉट का काम, आउटपुट को चेंज कर देना। जो तुम्हारा आउटपुट आ रहा है कंडीशन से, उसको मेन आउटपुट क्या कर देगा, ये बिल्कुल अपोजिट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर वर्क ऑन बिट लेवल, मतलब कंपाइलर कैसे काम करेगा कि पहले तो इनपुट को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, एंड देन उस बाइनरी इन्फॉर्मेशन पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेशन कहें तो बाइनरी एंड, बाइनरी और, एक्सोर या फिर जोर, बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट करेक्टर, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट। सो ये सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, एंड जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमें इंटीजर वैल्यू में डिस्प्ले करवाता है। For example, I have given two inputs. A is assigned by value 10 and variable B is assigned by value 15. अगर हम लोगों ने प्रोग्राम में बिटवाइज ऑपरेटर लिया है तो कंपाइलर क्या करेगा कि पहले तो
10 को बाइनरी में चेंज करेगा। तो बाइनरी में चेंज करने की एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी मैं, अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। ये सीरीज़ पता आनी चाहिए 1 2 4 8 16 32 64, ओके एंड सो ऑन। अब कंपाइलर 10 को कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे हम सीरीज़ में ढूंढेंगे कि क्या क्या ऐड करने पे हमें 10 बन रहा है। तो 8 + 2 = 10 होता है। तो यहाँ पे 8 के नीचे 1 लिख देंगे और 2 के नीचे 1 लिख देंगे। बाकी के जो भी रिमेनिंग होगी उसके नीचे हम लोग 0 0 पुट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम इसी तरीके से b की वैल्यू भी ना 15, तो उसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा कंपाइलर। आई एम यूजिंग बाइनरी एंड ऑपरेटर एंड आई रॉट c = a एंड b। अब क्या होगा कि a एंड b को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा कंपाइलर, फिर उन बाइनरी वैल्यूज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। एंड में क्या होता है कि दोनों वैल्यूज़ एक होनी चाहिए। यह हम देखते हैं लास्ट डिजिट से। a की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू देखते हैं 1 0 1 0 है। अब यहाँ से लास्ट वैल्यू क्या दिख रही है इसकी, 0 दिख रही है। तो अब 0 है और बी की वैल्यू क्या है लास्ट 1 है, तो यहीं पे हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट वैल्यू जो होगी ना वो 0 होगी आउटपुट में। और उसके बाद में सेकेंड यूनिट डिजिट को चेक करते हैं, दोनों की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। एंड ऐसे ही सारी वैल्यू चेक करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 1 0 1 0। और 1 0 1 0 की इंटीजर वैल्यू होती है 10, तो आउटपुट डिस्प्ले होगा हमें 10। नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेशन इज बाइनरी और। We have to implement same process on this operator, but in this OR operation, if any digit either from A or B is 1, then result will be also 1. Like अब A की और B की वैल्यू चेक करते हैं, तो 0 1 है, 1 1 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। और हम लोग सेकंड पे देखते हैं, 2 के नीचे देखते हैं, दोनों 1 1 है तो भी आउटपुट आएगा 1। अब 4 के नीचे देखेंगे 0 1, एक भी 1 आ गया तो 1। अब दोनों 1 है तो 1, आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा 1 1 1 1 की इंटीजर वैल्यू होती है 15, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 15। नेक्स्ट ऑपरेशन इज जोर। इस ऑपरेटर में क्या होगा, दोनों वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए। ए की अगर 1 होगी तो बी की 0 होनी चाहिए, या फिर वाइस वर्सा। इन केस वी हैव 2 1s और 2 0s, देन रिजल्ट विल बी ऑल्सो 0, ओके लाइक दिस, output will be 5. Next operator is binary ones complement character. It is also known as unary operator. In this, when we have a value 0, then it will convert into 1. And if value is 1, then it will give result as 0. Like if I write c is equals to complement a, then result will be 0 1 0 1. Because see, the binary value of a is 1 0 1 0. In this compiler will complement the digits as from 0 to 1 and 1 to 0. और अब इसकी 0 1 0 1 की बाइनरी जो डिजिट्स होती हैं वो होती है 5, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 5। नेक्स्ट ऑपरेशन इज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। यहाँ पे बिट्स को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। कितना शिफ्ट करना है हमें, ये लेफ्ट सिंबल जो ये हमारा स्मॉलर देन 2 बार यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट सिंबल। तो इसके बाद में जो वैल्यू हम लोग देंगे इसका मतलब समझ में आता है हमें कि हमें कितनी बार शिफ्ट करना है। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखा c = a इज़ लेफ्ट शिफ्टेड बाई 2, इट मीन्स 2 डिजिट्स को शिफ्ट करना है। अब a की वैल्यू चेक करते हैं, इट इज़ 10। बहुत सारे तरीके होते हैं वैसे तो लेफ्ट शिफ्ट करने के, बट आई प्रेफर दिस वन। व्हाट वी हैव टू डू इन दिस मेथड, वी हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला, लाइक 10 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 इज रेज टू द पावर 2, मतलब 2 इज रेज टू द पावर 2, दिस फॉर्मूला। ऐसे क्यों, ये 10 जो वैल्यू है वो कौन सी है, ये 10 वैल्यू वो है a की। a वेरिएबल की वैल्यू क्या है 10, तो इसलिए हमने यहाँ पे 10 लिया है, क्योंकि हमें a को शिफ्ट करना है, 2 बार शिफ्ट करना है, इसलिए 2 लिया है। एंड 2 की पावर 2 लिखा है। उसके बाद में 2 की पावर 2 4 होता है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 4, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 40। और 40 को बाइनरी में हम लोग ऐसे लिखते हैं 0 0 1 0 1 0 0 0। सेम एज विद बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर, लाइक इफ आई राइट c = a इज राइट शिफ्टेड बाई 2, तो a की वैल्यू में 2 डिजिट्स को राइट शिफ्ट करना है। a की वैल्यू है 1 0 1 0, देन इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला 10 इज डिवाइडेड बाई 2 इज रेज टू द पावर 2। सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 2.5, बट अगर हमने इंटीजर टाइप लिया है तो फिर राउंड ऑफ होकर आउटपुट आएगा 2, अदरवाइज अगर फ्लॉट में लेंगे तो 2.5 ही वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। Next type of operator is assignment operator. Assignment operator are used to assigning value to a variable. The left side of operand of the assignment operator is a variable and the right side operand of the assignment operator is a value. And the value on the right side must be of the same data type of the variable on the left side. Otherwise the compiler will raise an error.
अब तक इतना सारा पढ़ा है हमने, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर रहे थे, जैसे जैसे हम लोग कर रहे थे इंट ए इज इक्वल्स टू 10। तो इसमें भी क्या था कि 10 जो है वो हमने वेरिएबल ए को असाइन करा है, यही तो था असाइनमेंट ऑपरेटर। सो बेसिकली देयर आर 6 टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स दैट वी यूज इन C++ लैंग्वेज. First one is simple assignment operator, second one is add assignment operator, third one is subtract assignment operator, then multiply assignment operator, divide assignment operator, modulus assignment operator. First one is simple assignment operator. First one is simple assignment operator. This operator is used to assign the value that is on the right side to the variable on the left side. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू वाई। तो अभी क्या हो रहा है कि जो y की वैल्यू होगी, मतलब y जो है अब वो x को असाइन हो गया। अगर y की वैल्यू अगर 20 होती तो यहाँ पे क्या होता है, x की वैल्यू 20 हो जाती। ठीक है, तो जो राइट साइड में जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन हो जाती है। सो दिस इज हाउ सिंपल असाइनमेंट वर्क्स. Second assignment operator is add assignment operator. This operator is a combination of addition sign and equals to operator. This operator first add the current value of the variable on the left to the value on the right and then assign the result of the variable that is on the left. And syntax to write add assignment operator is x plus is equals to y and it is equals to x is equals to x plus y. मतलब जब भी हम ये ऑपरेटर यूज़ में लेते हैं तो जो रिजल्ट होगा एडिशन का, एक्स एंड वाई का रिजल्ट जो होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, एक्स वेरिएबल के अंदर. ऐसे ही सेम प्रोसेस होता है बाकी ऑपरेटर्स का. जैसे माइनस करना है तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी वाई एक्स के अंदर. एंड सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन, सेम फॉर डिवीजन एंड सेम फॉर मॉड्यूलस. And last type of operator is miscellaneous operator. This type of operator used for performing specific task. Type of miscellaneous operators are size of operator, conditional operator, comma operator, casting operator, address and pointer operator. First one is size of operator. Basically size of operator is used to compute the size of the variable. Like I have two variable a and b having value 10 and 20 respectively. Okay, so if I write size of a, then output will be 4 because a having an integer value and size of an integer is 4 as we have discussed already in the previous video. Like it is depend on totally on your machine. Next operator is conditional operator. Conditional operator is of the form, first we have to write condition and then question mark and then expression 1 colon then expression 2. Here condition is to be evaluated. If the condition is true, then we will execute and return the result of expression 1. Otherwise, if the condition is false, then we will execute and return the result of expression 2. We may replace the use of if and else statement by conditional operators. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि a is greater than b क्वेश्चन मार्क a colon b. It means a greater than b जो है हम कंडीशन चेक करेंगे. क्वेश्चन मार्क मीन्स वी आर चेकिंग द कंडीशन कि a ग्रेटर है क्या b से. यहाँ पे हम देखते हैं a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 30 है, ग्रेटर नहीं है. तब क्या होगा, अगर वैल्यू ट्रू होती तो हमारा a प्रिंट होता, अगर वैल्यू फॉल्स होगी तो हमारा b प्रिंट होगा. जो कोलन के बाद होगा वैल्यू फॉल्स होने पे वही प्रिंट होगा. अभी कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसका मतलब b वैल्यू प्रिंट होगी और b की वैल्यू कितनी है 30, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 30. नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर इज कोमा ऑपरेटर. कोमा ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय द टोकन कोमा. It is used to separate two statements. Like here we have two statements, a is equals to 20 and b is equals to 30 and we have separated by using comma. Okay, and the next operator is casting operator. Casting operator converts one data type to another. Like for example if I write int and bracket में मैं लिखूँ 2.200 something, so it will return 2 and it convert float data type into integer data type. Okay, because यहाँ पे हमने integer लिया ना ब्रैकेट में और floating point है, तो ये integer वैल्यू को में चेंज कर देगा, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 2. नेक्स्ट ऑपरेटर इज एड्रेस ऑपरेटर. इट रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट एंड ए, देन इट विल गिव द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एज अ आउटपुट. सो इट विल रिटर्न एड्रेस ऑफ ए. सो जहाँ पे भी ए स्टोर होगा ना वो उसका एड्रेस हमें आउटपुट में देगा. हमें अभी नहीं पता कहाँ स्टोर हो रहा है, तो मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया एड्रेस ऑफ ए. नेक्स्ट ऑपरेटर इज पॉइंटर ऑपरेटर. हियर वी यूज स्टार एज अ पॉइंटर टू ए वेरिएबल. लाइक इट पॉइंट्स टू ए वेरिएबल, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट स्टार, आउटपुट क्या आ जाएगा, ए की जो वैल्यू होगी वो हमारा आउटपुट आएगा. तो ए की वैल्यू कितनी है 20 है, तो हमारा आउटपुट भी आ जाएगा 20. ओके,
So that's all about operators in C++ programming language. Thanks for watching.